Hello students, I am Aman Sharma. Before we have to start the next exercise, that is 20th B, we have to learn some formulas. So first is area of quadrilateral ABCD. Okay, but note when diagonal is given and the perpendiculars are also given. So अगर आपको ABCD कोई एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है, उसके बीच का डायगोनल गिवन है, जैसे अब एक ये वर्टिसेस यूज हो चुका है डायगोनल में, एक ये वर्टिसेस, कौन से बचे बी एंड डी, वहाँ से आपको परपेंडिकुलर्स गिवन हो, तो इस पूरी क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या होता है, हाफ मल्टीप्लाई बाय दिस ए सी ब्रैकेट में बी एक्स प्लस डी वाई, ये जो परपेंडिकुलर्स की लेंथ होती है। तो ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। तो ये आपकी बुक में भी गिवन है पेज नंबर 248 पे, जो 20th ए एक्सरसाइज के जस्ट बाद ही कोई फॉर्मूला गिवन है। सो वेन एवर डायगोनल इज गिवन एंड परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस डायगोनल टू द वर्टिसेस, द एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल विल बी हाफ इंटू ए सी टू बी एक्स प्लस डी वाई। Next is when two diagonals cut each other at right angles, then half into product of. Okay, whenever there is a quadrilateral, उनके जो diagonals हैं वो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करें, कट करें, तो हमारे उस क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला क्या होता है ये फाइंड आउट करने का, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, सो बी डी इंटू ए सी इंटू हाफ। whenever जैसे काइट है, ये डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं 90 डिग्री पे, सो यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या होगा, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। सो अगर ये ए बी सी डी है, हाफ इंटू ए सी इंटू बी डी। सो रोम्बस स्क्वायर, इनके डायगोनल्स भी 90 डिग्री पे कट करते हैं, वहाँ पे भी हम ये अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट rectangle, you already know area of rectangle is length into breadth, perimeter 2l plus b. And one more thing, diagonal, अगर rectangle आपको given है, so what is the length of diagonal, that is under root l square plus b square. So this is your length, this is your breadth, this is your diagonal. Diagonal is equal to under root of l square plus b square. Square, area of square is side square, perimeter is 4 into side, diagonal. So for example, say, so diagonal formula is a into under root 2. If this is side is a, so area क्या हो गया, side square, perimeter will be 4 into a, and diagonal, the length of diagonal is equal to a under root 2, a multiplied by under root 2. Next is your parallelogram. So if this is a base given, this is perpendicular, so base into height, this is a formula for area of parallelogram. Square, rectangle, rhombus, these are also type of parallelograms. So if you are taking this as base, then this will become height. इस बेस से जो 90 डिग्री की एंगल पे आपने ये हाइट कैलकुलेट की है, ठीक है। अगर आप बेस चेंज करोगे तो हाइट भी चेंज होगी, then you will be taking this as height. So this length will become height if you are taking this as base. This will become height if this is base. Next is your rhombus. Perimeter 4a, area half into d1 into d2. हमने पहले भी डिस्कस किया था, क्योंकि रोम्बस ये जो डायगोनल्स हैं वो 90 डिग्री पे कट करते हैं। दैट मीन्स जो इसका एरिया है, हाफ इंटू लेंथ ऑफ डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, दोनों की लेंथ को मल्टीप्लाई करना हाफ के साथ, सो दैट इज़ द एरिया। थर्ड इज इसकी साइड, अगर साइड आपको कैलकुलेट करनी हो, डायमीटर डायगोनल्स गिवन है, तो उसका ये फॉर्मूला है, साइड स्क्वायर इक्वल टू d1 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस d2 अपॉन 2 स्क्वायर। ये सारे फॉर्मूले आपकी बुक में भी गिवन है, तो ये आपने लर्न करने हैं अच्छे से, ये आपको भूलने नहीं चाहिए कभी भी। Next quadrilateral is trapezium. So what is the area of trapezium? Half into sum of parallel sides into distance between the parallel sides. For example, ये साइड की लेंथ a है, इसकी लेंथ b है, so these are parallel sides.
तो इन दोनों का सम कितना हो गया a प्लस बी, हाफ इंटू ए प्लस बी, इन दोनों बीच के डिस्टेंस यानी कि ट्रेपीजियम की हाइट दैट इज h, हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू डिस्टेंस बिटवीन दीज पैरेलल साइड्स. These are the formulas that you have to cram. Okay student, first question find. Now we are going to start 20th B exercise. Find the area of quadrilateral, one of whose diagonal is 30 cm long and the perpendiculars from the other two vertices are 19 cm and 11 cm. So the first formula जो हमने किया था, कोई quadrilateral है, ये जो एक डायगोनल दिया हुआ है आपको, एक और ये वर्टिसेस की लेंथ दी हुई है, ये दोनों 90 डिग्री हैं. तो आपको एरिया का फॉर्मूला याद है जो हमने फर्स्ट फॉर्मूला डिस्कस किया था, हाफ इंटू दिस लेंथ दैट इज 30 प्लस सम ऑफ दिस लेंथ्स 19 प्लस 11, हाफ इंटू 30 19 plus 11 that is also 30. So 450 centimeters square. I guess quite easy question. The diagonals of quadrilateral are 16 and 13. They intersect each other at right angles. Find the area of quadrilateral. सो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि किसी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स जो हैं, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है उसके डायगोनल्स अगर 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, अगर वो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उसका एरिया क्या होता है, हाफ इंटू, ये 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2. सो एरिया क्या होगा इसका, हाफ इंटू 13 इंटू 16. So one is 13, one is, this is 13 and this is 16. So half into 13 into 16. 13 is 104 centimeter square. Okay, question number 3. Calculate the area of quadrilateral ABCD in which angle ABD is 90 degree and BCD is an equilateral triangle of sides 24. Okay, AD is 26. First of all we have to do a quadrilateral ABCD in which BCD, A, B, C. This if this is A, this is B, this is C, this is D. This is equilateral triangle. Angle ABD, this is of 90 degree. So this is not a actual diagram. So but we have considered this is given 90 degree, and these three sides are equal of 24 centimeter each. So we have to calculate the area of quadrilateral ABCD. So BCD is equilateral triangle. This is 90 degree, and here length AD is also given, that is 26. So I guess now almost question is solved. So we will split this question into two parts. Take it as first triangle, as this is a second triangle. Calculate the area of first triangle, calculate the area of second triangle, then add. What is the area of equilateral triangle? That is under root 3/4 into side square. Okay, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क ही है. इसका एरिया आपने कैसे निकालना है, अंडर रूट 3/4 इंटू 24 स्क्वायर. और इसका एरिया निकालने के लिए राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. यहाँ पे हाइपोटेन्यूज गिवन है, इसे बेस मान सकते हो, बट ये हाइट आपको अननोन है. सो टेक इट एज एक्स. सो पाइथागोरस थ्योरम निकाल के ये एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करो. 26 स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर. यहाँ से एक्स की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है. तो इसका एरिया कितना होगा,
हाफ इंटू 24 इंटू एक्स, जो भी एक्स की वैल्यू है, इन दोनों को ऐड करो, दैट विल बी योर फाइनल आंसर. दिस विल गिव यू फाइनल आंसर. ये चेक कर लेना, एक्स की वैल्यू आपकी आएगी 10, यहाँ पे पुट कर देना. दिस विल बी योर फाइनल एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD. सो हमने इसको दो पार्ट्स में स्प्लिट किया, इसका एरिया निकाला अलग से, इसका निकाला, दोनों को ऐड किया. नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इन विच AB is 32, AD is 24, एंगल A is 90 डिग्री, BC and CD are of equal length. फर्स्ट ऑफ ऑल हम A ड्रॉ करते हैं. दिस इज 90 डिग्री. A, so somewhere here B, AB is 32, BC and CD are of equal length. This is AD 24. So BC 52, CD also 52. So इसका आपने एरिया निकालना है. So first of all draw a diagonal BD. Now this क्वाड्रिलेटर को आपने टू पार्ट्स में स्प्लिट करना है. दिस इज़ योर फर्स्ट पार्ट, दिस इज़ योर सेकंड पार्ट. सो दिस इज 90 डिग्री. सो इस ट्रायंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये लेंथ कैलकुलेट कर सकते हो. टेक इट एज x. देन इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. और यहाँ पे तीनों साइड्स नोन है आपकी, तो आप यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, हीरोन्स फार्मूला, जो हमने पिछली एक्सरसाइज में यूज़ किया. सो जो भी एरिया फर्स्ट का है प्लस एरिया ऑफ सेकंड, दोनों को ऐड करो, दैट विल बी योर फाइनल आंसर. तो पहले आपने कैलकुलेट करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, ठीक है. उसके बाद फिर आपने कैलकुलेट करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, ठीक है. और आपके पास BD की वैल्यू नहीं गिवन थी, तो वो आपने इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा के पहले BD की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. Students, a number of questions are too much in this exercise, so I cannot solve every question, just I will give you hints how to solve. So जो ज़्यादा टफ क्वेश्चन है वो मैं completely solve कर दूंगा, but बाकी questions I will provide you hints. Now look at this fifth question. The perimeter of rectangular field is 3/5 kilometer. So perimeter आपको given है. If the length of the field is twice the width, लेंथ ट्वाइस है विड्थ से, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इन स्क्वायर मीटर. आई गेस ये इजी क्वेश्चन ही है. लेट विड्थ इक्वल टू x, देयरफॉर लेंथ कितनी हो जाएगी, 2x. पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2l प्लस b, विड्थ या ब्रेड्थ. So this is 3/5 किलोमीटर. सो यहाँ पे हम उन्होंने पूछा है इन स्क्वायर मीटर्स. तो पहले इस किलोमीटर को मीटर में चेंज कर देंगे, दैट मीन्स वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 1000. इसे 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया. 2 लेंथ की जगह 2x, ब्रेड्थ की जगह x. सो फ्रॉम हेयर आपकी x की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी. 2x plus x 3x, 3 into 2 6, 6x is equal to 3/5 into 1000. 200. सो यहाँ से x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 100. देयरफॉर लेंथ इज इक्वल टू 2x, 2 into 100, 200. ब्रेड्थ इज इक्वल टू x, दैट इज 100. सो एरिया फाइंड आउट करना था, लेंथ इंटू ब्रेड्थ. एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, दैट इज 2 मीटर स्क्वायर, 20,000 मीटर स्क्वायर. दिस इज योर फिफ्थ क्वेश्चन. लेंथ एंड ब्रेड्थ गिवन थी, पेरीमीटर सॉरी लेंथ एंड ब्रेड्थ को x एंड 2x फाइंड आउट कर लिया हमने, एज्यूम कर लिया. पेरीमीटर गिवन था तो वहाँ से हमने सोल्व किया, लेंथ एंड ब्रेड्थ हमें मिल गई, जस्ट मल्टीप्लाई एंड वी विल गेट आवर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, ए रेक्टेंगुलर प्लॉट
85 meter long and 60 meter broad is to be covered with grass, leaving 5 meter all around. Find the area to be laid with grass. Rectangular plot, length 85, breadth 60, is to be covered with grass, leaving 5 meter all around. Find the area to be laid with grass. So first of all एक rectangular plot है, so जिसकी width कितनी है 60, लेंथ कितनी है 85, ठीक है। तो इसे इसके ऊपर आपने ग्रास लगाना है एंड बट आपको हर एक साइड पे 5 मीटर की विड्थ छोड़नी है। सो ये सारी लेंथ आपने 5 मीटर ऑल अराउंड आपने लीव कर दी, तो आपके पास ये एरिया बचा ग्रास लगाने के लिए। सो ये कितना है 5, ये भी कितना है 5, दिस लेंथ इज आल्सो 5, दिस इज आल्सो 5। आपको ये जो शेडेड पार्ट है इसका एरिया फाइंड आउट करना है। जो शेडेड पार्ट है ये भी एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब ये जो आपकी कंप्लीट लेंथ है ये कितनी है 85। मुझे अगर ये लेंथ फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करेंगे, इस कंप्लीट लेंथ में से ये वाले 5 माइनस कर देंगे और ये वाले 5 भी माइनस कर देंगे। दैट मीन्स 85 माइनस दिस विड्थ माइनस दिस विड्थ, दैट इज 85 माइनस 10, दैट इज 75 मीटर। तो ये जो हमारी लेंथ आ गई ये कितनी आ गई 75 मीटर। सेम वे ये ओवरऑल 60 थी, उसमें से ये वाली विड्थ 5 माइनस कर दी और ये वाली भी माइनस कर दी, तो ये मेरे पास कितनी आ गई 50। ना 75 इंटू 50, तो जो आपकी लेंथ आपकी बची है वो क्या है 50 ब्रेड्थ है और 75, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, दैट विल बी योर आंसर। सो लेंथ ऑफ ग्रासी लेन क्या हो जाएगी 85 माइनस 5 माइनस 5, दैट इज 75, ब्रेड्थ 60 माइनस 50 हो जाएगी। सो एरिया क्या हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, दैट इज 75 मल्टीप्लाई बाई 50, सो 3750 मीटर स्क्वायर। स्टूडेंट नोट इट डाउन। Okay, length and breadth of rectangle are given 6 and 4 respectively. Find the height of triangle whose base is 6 cm and area is 3 times that of rectangle. So length and breadth rectangle की given है आपको, और आपको एक और ट्राइंगल है उसका बेस भी गिवन है एंड एरिया इज 3 टाइम्स दैट ऑफ रेक्टेंगल। तो आपने फाइंड आउट क्या करना है हाइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या गिवन है लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो गया लेंथ इंटू ब्रेड्थ 6 into 4, that is 24 centimeter square. So let the height of triangle be h. So let height of triangle be h. Therefore area of triangle क्या हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है 6, हाइट कितनी है h, ठीक है। अब आपको ये h निकालना है और आप कंडीशन क्या गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 3 टाइम्स एरिया ऑफ रेक्टेंगल। Area triangle is equal to 3 times area of rectangle. So what is the area of rectangle 24, we have calculated. So 3 into 24, what is area of triangle half into 6 into h. This is 3, so height must be 24 सेंटीमीटर। कुछ नहीं, हमने पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट किया, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाया
और जो दोनों के एरिया के बीच में क्वेश्चन में गिवन था कि ट्रायंगल का एरिया 3 टाइम्स है रेक्टेंगल के एरिया के, उस स्टेटमेंट को लिखा, वैल्यूज पुट की, वी विल गेट अवर आंसर. स्टूडेंट नोट इट डाउन. हाउ मेनी टाइल्स ईच ऑफ एरिया 400 centimeter square will be needed to pave a footpath which is 2 meter wide, surrounds grass plot 25 meter long and 13 meter wide. So कुछ टाइल्स लगानी है आपने फुटपाथ के ऊपर. जो फुटपाथ किसके अराउंड है? एक रेक्टेंगुलर ग्लास प्लॉट के अराउंड है. सो फॉर एग्जांपल ये आपका एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, ग्रास प्लॉट आपका 25 मीटर लॉन्ग, 13 मीटर वाइड. तो इसके अराउंड 2 मीटर वाइड आपने एक फुटपाथ बनाना है. तो ये सारी ब्रेड्थ, ये विड्थ कितनी है? 2 मीटर. इसके ऊपर आपने टाइल्स लगानी है. टाइल का आपको एरिया दिया हुआ है. तो कितनी टाइल्स लगेंगी ये आपने फाइंड आउट करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जो फुटपाथ है इसका एरिया कैलकुलेट करना है. इसका एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे? ओवरऑल जो बाहर वाली रेक्टेंगल है उसमें से ये जो अनशेडेड रेक्टेंगल है इसके एरिया को माइनस कर देंगे. सो वो क्या होगा? आपका एरिया ऑफ फुटपाथ. जैसे ए बी सी डी मान लें, ये ई एफ जी एच. तो एरिया फुटपाथ का क्या हो जाएगा? ई एफ जी एच माइनस एरिया ए बी सी डी. ठीक है, ब्रैकेट में रेक्टेंगल भी लिख सकते हो आप. सो ये कितना आ जाएगा आपका? ये लेंथ आपकी थी 25, इसमें ये 2 ऐड हो गया और ये 2 भी ऐड हो गया. तो ये ई एफ आपकी कितनी होगी? 25 + 2 + 2 दैट इज 29 मीटर. सेम वे दिस लेंथ वाज 13. ये बाहर वाली क्या होगी? 13 प्लस ये 2 मीटर और ये वाले 2 मीटर दैट इज 17 मीटर. सो एरिया ऑफ ई एफ जी एच का क्या हो गया? 29 × 17 माइनस ये जो अनशेडेड ए बी सी डी का एरिया ये क्या है? 13 × 25. 13 × 25. -493 माइनस 325 विच इज इक्वल टू 168 मीटर स्क्वायर. सो ये आपका आ गया एरिया ऑफ फुटपाथ. अगर एरिया ऑफ फुटपाथ आपको मिल चुका है, अब आपने फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ टाइल्स. वो क्या होगा? इन दोनों को डिवाइड कर दो. एरिया ऑफ टाइल को, अगर फुटपाथ के एरिया को अगर मैं एरिया ऑफ टाइल से डिवाइड कर दूंगा तो नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएगा. नंबर ऑफ टाइल्स required, that is area of footpath divided by area of tile, area of each tile. एरिया ऑफ फुटपाथ हमने अभी कैलकुलेट किया, कितना है? 168 मीटर स्क्वायर. एरिया ऑफ टाइल कितना दिया हुआ है? 400 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ यूनिट्स अलग अलग है. फर्स्ट वी हैव टू चेंज द यूनिट्स. तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है, बट मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर में चेंज करना है. तो दैट मीन्स हम 100 से 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे. सो दिस इज 4200 टाइल्स. कितनी टाइल्स रिक्वायर्ड है? 4200. ओके स्टूडेंट, ध्यान से नोट कर लो इसे. क्वेश्चन आपकी बुक में गिवन ही है. सो पहले हमने ये
जितना फुटपाथ का एरिया वो निकाला जिसके ऊपर टाइल्स लगानी थी। पहले वो एरिया भी पता होना चाहिए, पहले वो एरिया हमने पता किया, आउटर एरिया में से ये इनर एरिया माइनस कर दिया, ठीक है। उसके बाद इस एरिया को एक टाइल के एरिया से डिवाइड कर दिया, तो हमें कितना आ गया, नंबर ऑफ टाइल्स पता चल गई। ठीक है स्टूडेंट, अगर आपको इस चीज़ में डाउट है तो आप ऐसे देख सकते हो कि सपोज ये एक आपका कोई फ्लोर है, ठीक है, इसके ऊपर आपने टाइल्स लगानी है, ठीक है। ये फ्लोर की लेंथ कितनी है आपकी, 4, सारी साइड्स ये 4 है, ठीक है। टाइल आपने 2 जिसकी लेंथ 2 है, तो इसका एरिया कितना हो गया, 16 मीटर स्क्वायर। इसका एरिया कितना हो गया, 4 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे आप देखोगे तो ये 4 टाइल्स ही लगेंगी। सो ये लेंथ भी 4 है, तो आप देख सकते हो 1 2 3 एंड 4 टाइल्स लगी हैं। अगर आप इनके एरिया को डिवाइड करोगे तो भी 16/4 कितना होता है, 4। सो अगर आप इन्हें फिट करने की कोशिश करोगे तो आपकी 4 ही टाइल्स फिट हुई। तो नंबर हम कैलकुलेट करना तो हम क्या करते हैं, दोनों को डिवाइड कर देते हैं, दोनों। सो ओवरऑल एरिया को एक टाइल के एरिया से अगर डिवाइड कर दें तो भी हमारे पास नंबर ही आता है। सो दिस इज़, ये हमने यहाँ पे किया है। ओके स्टूडेंट, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।